Hello, dear aspirants. I hope you all are doing great. And I also believe that your preparation for APPSCC 2024 mains is going very strong. So I want you to continue that. And at this stage, it becomes very much indispensable for you to not get distracted and keep maintaining your consistency. Since New Year is coming up, many will tend or incline his or interest towards partying or celebration. But I would suggest you to keep focusing on your study. Don't get distracted by that celebration, because ultimately when you clear this exam and become an officer, you will be the only one who will be enjoying the fruit of your hard work. And after that, no matter how much party you want to enjoy, how many celebration you want to continue, it's up to you. No one will stop you. But now is the ultimate point where you should actually focus only on your studies. So this video is all about the strategy and tips for all of you to cover your entire syllabus for APPSCCE 2024 mains within these 2 and 3 months. This video will also be beneficial for aspirants who will be preparing for APPSCCE in near future. And but this video mostly inclined towards the aspirant who are preparing for mains this time. As you know, I had uploaded a video earlier on YouTube that was pertaining to some queries by some aspirants, and that was very raw, as I tried to keep it as short and simple as possible. And through that video, I got that there are still many aspirants who are confused on how to approach their mains preparation after clearing this preliminary exam. And I can totally relate myself with you all, because I was once an aspirant, and I was just like you all. After clearing prelims, I was confused. I had no guidance, as last exam APPSCCA 2020 was my first attempt. I didn't do any coaching, and within 8 months of preparation, through hard work, care, and dedication, I had cleared it. So I felt that this part, the position I am in right now, it becomes indispensable for me to share all my strategies, knowledge to you all. And this is only my personal knowledge. This is only for educational purpose. You can find, as I mentioned earlier also, you will find many videos on YouTube by toppers, mentors, and all. But I feel that particularly for APPSCCE, you don't get, you will not get much good videos for preparation. So if you like this video, kindly share this with your friends who are still confused, so that if I'm helping you, then you can also help someone by sharing this video, so that each and every one of us you know gets clear of our confusion and help each other. So in this video, I'll be covering entire topics from essay to GS to optional to qualifying papers, everything. But before that, there are still many aspirants who are confused. Like many wants to know कि सर ये मेंस का एग्जाम रूटीन कैसा रहता है. तो आपको थोड़ा हम हल्का सा आइडिया दे देता है. सी अब थोड़ा दिन बाद आपको कमीशन एक डेट नोटिफाई करेगा आपके मेंस के एग्जाम्स के लिए. ड्यूरिंग आवर टाइम, आवर प्रिलिमिनरी रिजल्ट केम ऑन November of 9 2020. I'm not so sure, 8 or 9. And after that, the commission notified the date for our mains exam. Our date was like 6 or 7 में हमारा मेंस का एग्ज़ाम था. एंड 5 दिन का आपको छुट्टी मिलता है, गैप मिलता है, सो दैट यू रिकवर एंड यू रिलैक्स. एंड देन 13 and 14 was our last date for एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम. तो सिमिलरली आपको भी थोड़ा दिन बाद कमीशन जो कुछ डेट नोटिफाई करेगा अपना मेंस एग्ज़ाम के लिए. तो फर्स्ट दिन आपका हमेशा 2 एग्ज़ाम रहता है, सेकंड दिन भी 2 एग्ज़ाम रहता है, उसके बाद आपको 5 दिन का गैप रहेगा. तो लास्ट का 2 दिन भी आपका 2-2 एग्ज़ाम रहेगा. तो हर एग्ज़ाम आपका 9 बजे से शुरू होता है 12 बजे तक, 3 घंटा का रहता है. और आपका जो सेकेंड एग्ज़ाम रहता है वो भी आपका 1 से लेकर 4 बजे तक रहता है. तो फर्स्ट डे यू विल हैव 2 एग्ज़ाम, qualifying paper and essay. This will be the 2 exam you have. Second day you will be having GS1, GS2, and after 5 days of gap you will be having GS3, GS4, and finally last date you will be having optional 1, paper 1 and paper 2, optional paper 1 paper 2. तो ये रहता है आपका टाइम. तो कंप्रहेंसिव जो इसका सिलेबस का आपका टॉपिक्स वगैरह क्या है वो आपको धीरे धीरे बता देगा. तो दिस वाज a brief idea for you all. So in this video I'll be covering the Arunachal and Northeast topics, as many aspirants were suggesting me कि सर इनके ऊपर एक वीडियो बना लीजिए. तो my first series before starting or before going through all these
GS, essay and optional. I'll be starting with Arunachal topics. तो अरुणाचल के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस, दे आर स्टिल कंफ्यूज एंड बहुत लोग हमको अभी भी पूछ रहा है कि सर एक बुक या फिर रिसर्च पेपर कुछ बता दीजिए अरुणाचल का टॉपिक्स के लिए. माय डियर, सी आई विल बी वेरी पोलाइट एंड स्ट्रेट इन दिस पॉइंट. अभी का समय आपका साथ समय नहीं है. हाँ, अगर आप फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं PPSC CE के लिए, देन ऑब्वियसली इंटरनेट में बहुत सारा बुक्स, बहुत सारा आपको टॉपिक्स मिल जाएगा, यू कैन गो थ्रू इट. बट अगर आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोलने से आपका साथ जेन्युइनली समय नहीं है, तो फॉर देट आई विल सजेस्ट कि आई विल गिव यू सम टिप्स, आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, वो मेरा आइडियाज़ रहेगा. तो आई विल स्टार्ट विथ सम टॉपिक्स जहाँ में आपका रिसेंटली जो कमीशन जो है एडिट किया है, न्यू एडिशन किया अरुणाचल का टॉपिक्स को सिलेबस में. तो अगर आप देख सकते हैं इधर सामने में, आप सामने में अपना सिलेबस को रख लीजिए. तो आई विल स्टार्ट विद एसे, क्योंकि मेंस में सबसे पहले बात एसे में आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कुछ एडिशन किया गया है. तो पार्ट 1 बेसिकली मीन सेक्शन ए, पार्ट 2 बेसिकली मीन सेक्शन बी. तो आप हमेशा देख लीजिए, पार्ट 1 में हमेशा करंट अफेयर्स बेस्ड रहता है, कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स जो मतलब रिसेंटली जो चल रहे केसेस वो सब रहता है. एंड पार्ट 2 इज मोर और लेस फिलोसॉफिकल होता है हमेशा. बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, आई हैव रिसर्च फ्रॉम पास्ट 4 or 5 years. अगर यूपीएससी के क्वेश्चन ट्रेंड भी देखा जाएगा तो क्या होता है कि ऐसे में भी अभी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में दोनों में थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछ रहा है. सो दैट शुड बी योर प्रायोरिटी कि आप कैसे अगर क्वेश्चन को एनालाइज करें. बट येस, अगर आप ये अरुणाचल का टॉपिक्स को देखा जाएगा तो सेक्शन ए में आपका प्रॉपरली मेंशन है कि एसेस रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स. पार्ट 2 में सेक्शन बी में लिखे गए कि एसेस रिलेटेड टू इशू ऑफ सोशल कल्चरल डेवलपमेंट एंड करंट बर्निंग टॉपिक्स. तो ये है. तो एक चीज़ केवियट यहाँ में ये है कि सी आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन एनी टॉपिक्स इन एनी सिलेबस, एंड आई डोंट वांट यू टू बी एक्सपर्ट. I just want you to have some basic knowledge of some topics pertaining to Arunachal. See, irrespective of any topics, हम लोग किसी को वो नहीं बनना है, रिसर्च स्कॉलर्स नहीं बनना है, हम लोग को एक्सपर्ट नहीं बनना है, हम लोग को सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है बेस ऑन दिस टॉपिक्स. तो आपको जो नॉलेज को है वो रखिए, बेसिक रखिए, रिलेवेंट रखिए टू द सिलेबस, ताकि आप ज़्यादा पढ़ लेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि बाकी जो जीएस ऑप्शनल आपको कवर करने तकलीफ हो जाता है. तो अरुणाचल का इसका हिसाब से आप पढ़ लीजिए. तो आई विल बी सजेस्टिंग कि जैसे एसए में रहता है आपका, सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आता है जो भी है. सेक्शन बी में सिमिलरली 4 और 5 क्वेश्चन आता है. तो हर एक सेक्शन में यू कैन एक्सपेक्ट कि अरुणाचल का टॉपिक श्योर आ ही सकता है, गिवन दैट कि इंटरनेशनल और नेशनल का जो टॉपिक्स वो तो आएगा ही है. बट यू कैन मतलब प्री कॉन्सेप्ट और सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा वो आप नोशन को बिठा लीजिए कि अरुणाचल का टॉपिक्स पूछ सकता है. तो जैसे कि पार्ट 1 में तो सिमिलर है जो करंट अफेयर्स बेस है, पार्ट 2 में प्रॉपरली मेंशन किया गया है आपका सोशल कल्चर एंड डेवलपमेंटल एंड करंट बर्निंग टॉपिक्स. तो सोशल में बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारा जो सोशियोलॉजिकल स्टेट कैसा रहता है, मतलब हम लोग का जो ये मैरिज लाइफ कैसा है, एंड देन पेट्रियार्कल सिस्टम कैसा है, वो सब पूछ सकते हैं सोशल बर्निंग टॉपिक्स में. एंड देन कल्चरल में फेस्टिवल्स वगैरह पूछ सकता है. एज यू नो, फेस्टिवल्स हमारा जितना है अरुणाचल में, सब लोग टू सम एक्सटेंट किसी ना किसी से रिलेटेड है, जैसे कि हार्वेस्टिंग हो गया एंड सुपरनेचुरल पावर से हो गया, कुछ भी चीज़ से. एंड डेवलपमेंटल प्रोग्रेस अगर आप देखा जाए तो रिसेंटली अरुणाचल में बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहा है, कॉलेजेस बन रहा है, रास्ता बन रहा है, एंड देन न्यू डेवलपमेंट्स आर कमिंग अप. एंड जैसे करंट बर्निंग टॉपिक्स हो गया, रिसेंटली इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, तो इलेक्शन से रिलेटेड कुछ इश्यू जैसे मनी कल्चर हो गया. एंड देन इसी दिन इलेक्शन हुआ है तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हुआ था, कुछ फायरिंग इंसिडेंट वगैरह. तो वो सब करंट बर्निंग टॉपिक्स को आप प्रॉपरली फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करके रिसर्च कर सकते हैं, वो सब देख लीजिए. इसका प्रोस एंड कॉन्स की, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, और कैसे करके इसको टिक कर सकता है. एंड कुछ रिपोर्ट्स वगैरह होता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का कुछ रिपोर्ट्स वगैरह होता है, वो सबको एडिट कीजिए इसमें अच्छे से. तो ये सब होता है, आप ऐसे करके पढ़ लीजिए करंट बर्निंग टॉपिक जो करंट अफेयर्स के हिसाब से. और करंट अफेयर्स जो अरुणाचल में इतना होता नहीं है, बाहर का जैसे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स का आपको बहुत सारा टॉपिक्स मिल जाएगा. तो ये मेरा तरफ से आपके लिए एक पर्सनल एक टिप्स एंड ट्रिक्स रहेगा. शायद बहुत लोग अप्लाई भी करता भी होगा, बहुत लोग अप्लाई नहीं भी करता भी होगा, विच आई हैड अप्लाइड. तो कभी भी आप अगर अरुणाचल का अगर आप न्यूज़ चैनल देखो फेसबुक में या फिर यूट्यूब में, आजकल हर चीज़ का न्यूज़ बनता है. तो हर न्यूज़ आपको देखना ज़रूरी नहीं है. पर्सनल चीज़ हो रहा है, प्रेस ब्रीफिंग हो रहा है,
अननेसेसरी चीज़ में देखना ज़रूरी नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ रहता है, तो उसको जैसे रास्ता से रिलेटेड हो गया, सोसाइटी से रिलेटेड हो गया, जैसे कुछ होता है, उनको आप देख लीजिए। देखने के बाद डोंट गिव मच टाइम, जस्ट हल्का सा देख लीजिए क्या बोल रहा है। एंड देन अगर आपको समय मिलता है तो यू जस्ट गो थ्रू सम कमेंट सेक्शन। डोंट कमेंट, कमेंट सेक्शन में आपको यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट डायनामिज्म ऑफ आंसर्स, कमेंट्स। वहाँ से आप कुछ भी कमेंट्स को पढ़िए तो उसका आपका दो पॉइंट ऑफ व्यू होगा। शायद आप कुछ सोच रहा होगा वो न्यूज़ को देख के, बट देन अगेन अगर आप कमेंट पढ़ेगा तो आपको लगेगा कि नहीं, अच्छा दूसरा का भी किसी का भी ये व्यू पॉइंट है। तो यू ऑलवेज ट्राई टू कोरिलेट। एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल समवन इज टॉकिंग अबाउट प्रोस, अगर आपको आप कौन से बोल रहे हैं तो आप हमेशा कौन से सिर्फ फोकस मत कीजिए, उसका प्रोस में भी फोकस कीजिए। उसके बाद दोनों का एमालगेमेट करके आप प्रॉपर एक पॉजिटिव आंसर ला दीजिए कि क्या है। इन दैट वे इट विल बिकम हैंडी फॉर यू टू अप्रोच टुडेज न्यूज़ मीडिया चैनल्स, या उसको कैसे अप्रोच करना है। तो ऐसा करके करंट बर्निंग टॉपिक्स के साथ आप रिलेवेंट रह सकते हैं अरुणाचल का। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक देयर इज अनदर वे। आप दूसरा का मुंह से सुनना इज़ बेटर कि आप वॉच करो कुछ वीडियोस वगैरह यूट्यूब में। बट बेकार का टाइम वेस्ट मत कीजिए, जस्ट गो थ्रू इट एंड जस्ट उसको कभी कभी एड ऑन कर दीजिए आप नोट्स में। अब ये है मेंस एग्जाम का पार्ट बी, जो कि जनरल स्टडीज़ में, इसमें बहुत सारा टॉपिक्स एडिट किया है कमीशन, जो न्यूली एडिशन किया है सिलेबस में। तो आप काइंडली देख सकते हैं, आप अपना सिलेबस को सामने ला लीजिए। उसके बाद सामने रखने के बाद कुछ अगर इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप उसका पॉइंट आउट नोट मेकिंग करते रहिए। तो कुछ कुछ है, जैसे GS1 पर्सपेक्टिव से देखा जाए, टोपोग्राफी, रिवर लाइन हो गया आपका, कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज। एंड देन GS3 पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आपके यहाँ में है सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमी ऑफ अरुणाचल, कॉमर्स, ट्रेड, समथिंग है। एंड देन आपका GS2 पर्सपेक्टिव आप देखा जाए तो आपका रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एवोल्यूशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, एंड देन सम द हियरिंग कमिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आर दिया। तो सी मेरा एक पर्सनल सजेशन रहेगा, पर्सनल टिप्स है, कि आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए बुक्स में। वेरी सिंपल से आप टॉपिक्स को सिर्फ फोकस कीजिए। अगर आप टॉपिक्स अच्छे से देख पा रहे हैं तो यू विल रिलेट की टोपोग्राफी, रिवराइन सिस्टम क्या है, सुबनसिरी, कामेंग, सियांग, ये सब अच्छे से जान लीजिए, कहाँ से फ्लो होता है, कहाँ से आते हैं, यारलुंग सुम्फो से आता है, चाइना से आता है। तो ये सब चीज़ आप जान लीजिए, रिवराइन सिस्टम, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये सब देख लीजिए। टोपोग्राफी भी प्रॉपरली अपना है, अपना रीजियस है, माउंटेनी एरिया है, ये सब क्या है देख लीजिए। तो ये सब चीज़ सिंपल है। आपको सिमिलरली आपका जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ वगैरह आता है आपका, तो सब चीज़ का आप अटैच कीजिए। गिवन डेट की स्टैटिक बुक आपका अपना है वही रहेगा, जैसे इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS वगैरह हो गया, तो वो सब रहेगा। एंड देन ट्रेड एंड कॉमर्स, इकोनॉमी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सी इकोनॉमी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपको पता ही है अभी रिसेंटली बहुत सारा हम लोग का एक्टिविटीज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आ रहा है, तो उसमें इकोनॉमी ऑफ अरुणाचल प्रदेश कैसा है, ट्रेड एंड कॉमर्स, अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आ रहा है अरुणाचल में, तो उनसे रिलेटेड अरुणाचल का इकोनॉमी कैसे इम्पेक्ट पड़ता है, तो वो सब चीज़ भी आप देख लीजिए। एंड देन जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन से अरुणाचल में, ये सब का तो आपका हिस्ट्री है। ये सब को आप अच्छे से एक बार नेट में सर्च कर लीजिए और उसका एक पॉइंट्स बना लीजिए, सबका एक प्रॉपर पॉइंट्स बना लीजिए। फॉर एग्जांपल आपको पूछे मैकमोहन लाइन, तो मैकमोहन लाइन का आपका कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैकमोहन लाइन किसके नाम से रखा है, कौन कौन सा ये कंट्री इसमें इन्वॉल्व थे, क्यों है, कैसा है, किस लिए है, तो प्रॉपरली मेंशन आप नोट मेकिंग बना लीजिए आप एक मैकमोहन लाइन का, कि मैकमोहन लाइन क्या है। एंड देन उस समय में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था, कौन कौन सा कंट्री था, तो ये सब हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब चीज़ आप देख लीजिए। एंड देन कुछ इंडिया या फिर और अरुणाचल का इंडिया से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री था, तो जैसे कि बैटल ऑफ वालोंग हो गया, एंग्लो आबर वार हो गया, तो ये सब चीज़ को अच्छे से आप देख लीजिए गूगल में सर्च करके, क्योंकि ये अरुणाचल पर्सपेक्टिव देगा आपको ना। तो ये सब चीज़ को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप नोट डाउन करके अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इसको। एंड देन जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इवोल्यूशन से, ये सब को अच्छे से आप नोट्स बना लीजिए, जैसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट, ये सबको नोट्स बना लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन, दाइंग हियरिंग कमिटी किस लिए था, क्यों था, क्या के लिए था, कौन कौन सा इन्वॉल्वमेंट था उस समय में, तो ये सब चीज़ अच्छे से आप बना लीजिए नोट्स को। सो अभी हम अरुणाचल का तो थोड़ा सा कवर कर दिया आपको जितना हो सके फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। And then from now I will cover all this comprehensive syllabus like in general English, essay, GS, ऑप्शन, उसको आप कैसे अप्रोच कर सकता है। और ये वीडियो आपसे अब थोड़ा लंबा जा सकता है, बट दिस इज़ ओनली फॉर यू, फॉर योर ओन बेनिफिट। लाइक इफ़ यू गिव
some time to my videos, then I feel that you will gather some knowledge and it will help you in many ways. आप कंफ्यूज होके कहीं 5-6 घंटा 5-6 दिन बिताने से अच्छा काइंडली थोड़ा समय लग जाएगा वीडियो में, उसको आप देख लीजिए। आपको अगर रिलेवेंट लगा है बोलने से आप काइंडली इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपना प्रिपरेशन में और दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हर कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उनको भी तो एक अपर हैंड मिले कुछ भी चीज़ में। तो आई विल स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विथ कम्प्रहेंसिव जनरल इंग्लिश क्या है। तो बहुत लोगों का आइडिया भी होगा, बहुत लोग मेंस एग्ज़ाम दे भी चुका होगा, और एंड आई ऑल्सो लाइक एक्सपेक्टिंग आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि आप सबको पता है, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर किए तो, कि इसका जो ट्रेंड, इसका जो स्ट्रक्चर कैसा रहता है मेंस का। बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ सम अदर एक्सपीरियंस आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। जनरल इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। आपको दे गिव यू 300 मार्क्स, जहाँ से आपको 25% लाना है, विच इज़ 75 मार्क्स आउट ऑफ 300। 3 घंटा का पेपर रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। उसमें है सिर्फ ऐसे होता है, ज़्यादा 500 वर्ड्स का ऐसे रहता है, उसको आपको लिखना है। और एक ऐसे होता है जिसको आपको शॉर्टन करना है, एंड देन पैसेज होता है, एंड देन सम फिल इन द ब्लैंक्स एंड सम लेटर्स वगैरह होता है, जी इज़ वेरी सिंपल अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहा है तो। बट येस, वन केवेट इज़ देयर कि बहुत लोग को ये लगता है कि इंग्लिश बहुत ईजी है तो आई वोंट बी प्रिपेयरिंग एंड देन आई विल जस्ट गो। तो इसी के चलते बहुत लोग जो मार खा लेता है। एंड आई रिमेंबर लाइक 1 or 2 friends are there who couldn't make it to this interview only because of this comprehensive English जो qualifying paper, क्योंकि they kept it very simple, preparation नहीं किया है। एंड देन एंड ऑल्सो ये आपका एग्जाम, मेंस एग्जाम का सबसे फर्स्ट पेपर रहता है, तो बहुत लोग नर्वस भी हो जाता है, तो उसके कारण दे couldn't क्लियर दिस इन टाइम। तो उसके साथ हुआ नहीं। तो इसको आप काइंडली थोड़ा देख लीजिए एटलीस्ट पेपर कैसे है देख लीजिए उसको, और इंग्लिश वगैरह को थोड़ा ठीक कर लीजिए। और फर्स्ट पेपर रहता है तो हमेशा मेंटली रेडी रहेगी, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, आई विल बी रेडी फॉर इट। तो ये हो गया इंग्लिश का रिलेटेड। और ये वीडियो है एसए से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं अभी भी एसए को लेके बहुत कंफ्यूज स्टेट में है, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड एसए का क्वेश्चन डिटरमाइन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आई विल गिव यू सम हाइलाइट्स। ऐसे आप में आपका 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए इज़ वेरी मच रिलेटेड टू आपका करंट अफेयर्स, सेक्शन बी पर्टेन्स टू आपका फिलोसॉफिकल टॉपिक्स। एंड देन आपका ये ऐसे 3 घंटा का होता है, और मेरा सजेशन रहेगा कि हर एक सेशन का 1.5 आवर्स दे दीजिए, ताकि उसमें आपका 3 घंटा का समय रह जाता है। तो हर एक सेक्शन में यू हैव टू राइट एटलीस्ट 1000 to 200 वर्ड्स ऑफ ऐसे। और सेक्शन ए एज आई मेंशन करंट अफेयर्स रहता है, सेक्शन बी फिलोसॉफिकल होता है। और फ्रॉम द लास्ट 3 और 4 ईयर्स का पेपर अगर आप देखा जाएगा तो यूपीएससी का, तो उसमें आप देख सकता है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में थोड़ा फिलोसॉफिकल टाइप का क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रह जाइए कि कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो ताकि आपको बाद में टेकन बाई चांस ना होने के लिए। और ऑलवेज एटलीस्ट ट्राई टू राइट वन ऐसे, गलत होने से भी लिख लीजिए, क्योंकि इट इज़ ऐसे पेपर इज़ वेरी लॉन्ग। लिटरली हाथ हम लोग ऐसा करके आए, दर्द हो जाता है, बिकॉज लास्ट एग्जाम वाज माय फर्स्ट अटैम्प्ट और उसमें हम क्लियर किया था, तो आई हैड नो गाइड, तो हमको पता नहीं था कि कैसा था। तो आप काइंडली प्रिपेयर हो जाइए उसके लिए। और बहुत सारा लोग हमको सजेशन पूछ रहा है कि सर स्ट्रेटेजी कैसा है, तो मेरा पर्सनल स्ट्रेटेजी यही रहेगा कि हमेशा मेंटेन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। करंटली आई डोंट हैव माय ऐसे नोटबुक हियर, बिकॉज ऐसे का हम कुछ नोट्स बनाया नहीं था, बट ये सम टॉपिक्स वेयर देयर हमारे समय में कि कोविड-19 बहुत ट्रेंड में था, एंड देन इकोनॉमी गिर रहा था, तो आई मेड सम टॉपिक्स ऑन दैट। तो आई विल गिव यू सम आइडियाज एग्जांपल थ्रू दिस वीडियो। तो आप हमेशा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन बना लीजिए। जैसे इंट्रोडक्शन में आप कुछ भी स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं। एट आवर टाइम कोविड बहुत ट्रेंडिंग में था, तो आई हैड प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड कोविड के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन, टॉपिक्स, रिपोर्ट्स वगैरह। तो आई स्टार्टेड विद वन स्टोरी, आइजैक न्यूटन का स्टोरी था, जहाँ में बुबोनिक प्लेग या समथिंग कुछ बड़ा सा प्लेग आ गया था, तो उसके चलते है वो कैसा करके नया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह लाया है, वो सब स्टार्ट किया स्टोरी से। एंड देन बॉडी में आई यूज सम प्रोस कॉन्स एंड न्यू इनिशिएटिव्स। प्रोस कॉन्स लाइक कि आपका प्रोस में हो गया कि कोविड का समय में कितना कितना क्या क्या बेनिफिशियल, क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइडियाज हम लोग डेवलपमेंट होने शुरू हुआ है। कौन में हो गया कि मैनी बहुत सारा लॉसेस हुआ है हम लोग को, बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस हुआ है, एंड देन बहुत
इस एजुकेशन से लेके कुछ भी चीज़ से लेके बहुत सारा इम्पैक्ट हुआ था। तो वो सब चीज़ कौन से में आता है, तो इम्पैक्ट लाइक एजुकेशन सेक्टर में हो गया, कितना इम्पैक्ट ड्रॉप आउट हो रहा था। एंड देन हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारा बेड्स बिस्तर्स का कमी था, हॉस्पिटल बहुत कंजस्टेड हो गया था बिकॉज दिस वाज टेकन बाय एयर कोविड-19, तो किसी को आइडियाज़ नहीं था। एंड देन डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह बहुत सारा सोसाइटी में हो रहा था हमारा। तो एंड ऑल्सो ऑलवेज ट्राई टू एड सम रिपोर्ट्स एंड कमिटी कुछ इनिशिएटिव्स। फॉर एग्जांपल एजुकेशन से यूनेस्को का रिपोर्ट में था जहाँ में वो ड्रॉप आउट का था, तो विच आई एडेड। एंड देन healthcare sector में some committee and some reports I added, and domestic violence also some, या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन समथिंग का कुछ रिपोर्ट्स वगैरह ऐड किया था, वो सबको आप ऐड कर लीजिए। न्यू इनिशिएटिव एज आई मेंशन कुछ कुछ आइडियाज़ नया डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमी में बहुत चेंजेस हो गया आफ्टर कोविड, वो सब चीज़ को आप ऐड कर दीजिए। ऑलवेज मेक सम पॉइंट्स लाइक कि प्रोस बोलने से ऑलवेज मेक प्रोस को आप बॉक्स के अंदर में सर्कल कर दीजिए, कॉन्स को भी बॉक्स अंदर कर दीजिए, ताकि तो रेडीमेड आंसर सुंदर लगे देखने में। तो ऑलवेज स्टार्ट विद बॉडी इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन में आप लिख दीजिए कि वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है, जैसे कोविड-19 के समय में वे फॉरवर्ड क्या है हमारा फ्यूचर को लेके। एंड देन कुछ गुड रिमार्क्स जैसे कि, या फिर कुछ गुड स्टोरी टू रिक्रिएट, जैसे कि मान के चलिए कोविड-19 के समय में किसी और ज़माना में कुछ बीमार प्लेग आया था, तो वो कंट्री का रिक्रिएट कर सकते हैं आइडियाज़ को, ये सब कुछ आप प्रॉपर्ली ऐड कर दीजिए। तो इसमें क्या रहेगा कि आपका थोड़ा अ, सब कुछ सिस्टमैटिक रह जाएगा। तो अगर करंट ट्रेंड के हिसाब से देखा जाएगा तो आपका कुछ हमारा ये पॉलिटिक्स को लेके बहुत इशू चल रहा है, एंड कुछ डेवलपमेंट को लेके बहुत इशू चल रहा है हमारा यहाँ में, तो उसका टू द पॉइंट बिफोर हैंड नोट्स बना सकता है। जैसे कि डेवलपमेंट से आपका क्या क्या डेवलपमेंट आया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल या फिर कोई भी इंडियन गवर्नमेंट में, तो उसका क्या क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रोड बन रहा है, रास्ता आने का कारण क्या हो गया कि जगह में डेवलपमेंट आ रहा है, इंटरनेट वगैरह आ रहा है, नेटवर्क वगैरह आ रहा है, बट एट व्हाट कॉस्ट। वो कॉस्ट ये है कि आपका ये एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर आप कभी कभी न्यूज़ सुने तो आपको पता भी चलेगा कि एलिफेंट्स, टाइगर्स एंड रिसेंटली ब्लैक लियोपार्ड समथिंग कुछ किसी को मारा गया था कहीं में। तो क्या होता है कि लाइक डेवलपमेंट के चलते ही हम जो क्या होता है इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, वो सबको भी आप लिख सकता है। और कुछ कुछ चीज़ में आर्ट कटिंग करें तो लैंडस्लाइड, एरोजन होता है, घर, फैमिली लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है, एंड देन रास्ता कुछ डेवलपमेंट करने में कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वो सब चीज़ को आप एडिट कीजिए कुछ कुछ रिलेटेड। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्शन को रिलेटेड भी मनी कल्चर होता है हमारा, मनी कल्चर को कैसे बंद किया जा सकता है, और किसी कमिटी, किसी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव आइडियाज़ को आप कोट कीजिए उसमें। तो उसमें क्या होता है कि प्रॉपर्ली आपको एक रेडीमेड आंसर आप बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको इसी लास्ट में हेल्प आ सके। और ये सबको उसके बाद ये सबको प्रॉपर्ली यूज़ करने के लिए हर कोई का अपना अपना ट्रिक्स रहता है। तो मेरा समय में आता है डीट की क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट पेपर में होता है, हम जो रेडीमेड बना चुका था ऐसे कुछ, जैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उसको हम जैसे सेक्शन ए में कुछ टॉपिक्स हमको अच्छा लगा, तो हम क्या करता था कि टॉपिक्स को हम जो पेपर का जो आपको ही पता होगा मेंस का जो पता नहीं होगा तो हम बता देते हैं आपको। मेंस पहले जैसा बुकलेट में नहीं आता है, आपको क्वेश्चन अलग से आएगा, बुकलेट अलग से मिलेगा, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर्ली आपको एक पेपर में आता है, सॉरी एक बुकलेट में आता है, जहाँ में क्या होता है कि क्वेश्चन ऊपर में है, नीचे में आपका आंसर लिखना होता है। तो अगर आप सैंपल देखा है तो आपको पता भी होगा। तो पीछे में लास्ट में आपको रफ मिलता है कुछ रफ। तो क्या होता है कि रफ में आपको प्रॉपर्ली आप जो रफ कर सकते हैं अपना, तो उसमें जो भी आपको सेक्शन से जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है, तो आप क्या कर लो उसको कि प्रॉपर्ली उसका टॉपिक्स को आप लिखो, एंड देन कुछ कुछ पॉइंट्स जैसे यूनेस्को का हो गया, आपका यूनिसेफ का हो गया, एंड देन आपका कुछ भी कोई भी कमिटी का रिपोर्ट हो गया, WHO का हो गया, उसको आप साइड साइड में लिख दीजिए, क्योंकि भूल जाता है हम लोग समय में, क्योंकि दो ऐसे लिखना पड़ता है, 1200 वर्ड्स का लिखना पड़ता है, तो बहुत कन्फ्यूजन सा रह जाता है। तो ऑलवेज मेंटेन कीजिए, एंड गुड गुड कोटेशन, गुड गुड ये आपका रिमार्क्स वगैरह को हमेशा ऐड कीजिए। कुछ स्टोरी अच्छा अच्छा होता है उसको आप रिक्रिएट करने के लिए याद कीजिए, ताकि आप बीच इसमें हमेशा ऐड कर सके, पीछे में ऐड कर दीजिए ना। पूरा नहीं लिखने से भी ABCD जो भी अपना हिसाब से ट्रिक्स के हिसाब से लिखिए, ताकि आप भूल गया तो पीछे जाके आप वापस देख सकता है उसको। तो ये है आपका एक ट्रिक्स। एंड देन सेक्शन बी मोर और लेस फिलोसॉफिकल होता है। फिलोसॉफिकल तो तकलीफ होता है इसको ऐसा क्वेश्चन को गोज करने के लिए ना, तो फिर से आपका साथ समय भी कम रहता है। तो क्या होता है कि जितना आपका नॉलेज प्रीवियस गैदरिंग से है ना, नॉलेज जैसे आप कुछ GS वगैरह पढ़ लिया, कुछ आप यूट्यूब या फिर फेसबुक वगैरह में अरुणाचल का न्यूज़ है कुछ भी देख लिया, उससे आप हमेशा पॉजिटिवली रिक्रिएट करने के लिए सोचिए।
ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, तभी आपको क्या होता है कि आंसर अच्छा बनेगा। तो ऐसा करके ये पेपर जो बहुत फिलोसॉफिकल है, तो यू ऑलवेज हैव टू बी पॉजिटिव इन दिस पेपर, ऑलवेज ट्राई टू इम्प्लीमेंट द आइडियाज ऑफ करंट अफेयर्स विद स्टैटिक। तो ऐसे करके एडिशन करके आप कुछ आंसर्स बनाइए अपना। और इसका जो पेपर का क्वेश्चंस कैसा आएगा कोई घोष नहीं कर सकता है, बट ऑलवेज थिंक कि फिलोसॉफिकल से पेपर आता है। तो दैट इज़ वाई ऑलवेज मेक वन रिपोजिटरी जहाँ में आप गुड कोटेशंस, गुड स्टोरीज वगैरह आप लिख कर रखें, जैसे कि स्वामी विवेकानंदा का हो गया, महात्मा गांधी का हो गया, एंड देन अब्राहम लिंकन का कुछ कुछ कोटेशंस वगैरह रहता है, ताकि आप कभी भी यूज़ कर सकता है उसको। तो ऐसे करके आप ऐसे का ये स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप जो हमेशा ऐसे में यू कैन एक्सेल। तो ये वीडियो है अभी GS1 के लिए। तो GS1 में आप टॉपिक्स को सामने, सिलेबस को सामने रख लीजिए ताकि आपको ईजी रहेगा। तो इसमें है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सोसाइटी, ज्योग्राफी एंड आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको बता देता है थोड़ा। हम एनालाइज किया है पेपर फ्रॉम 2014 एंड 2024। तो उसमें इस वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना कुछ क्वेश्चंस पूछा नहीं, हार्डली 3-4 ऐसा पूछा है। तो उसका तो वर्ल्ड हिस्ट्री एज यू नो इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहता है आपका, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सब चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह है उसको आप जो, जैसे आपका कोल्ड वार वगैरह है, वर्ल्ड हिस्ट्री, जो वर्ल्ड वार 1-2 क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, वो सब चीज़ को रख लीजिए। ज़्यादा कुछ करना ज़रूरी नहीं है, ये ट्रेंड का हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। एंड देन आपका हिस्ट्री हो गया। तो हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया आपका, ये एंशियन एंड मीडिएवल हो गया। तो वो सब चीज़ के लिए आपको ज़्यादा कुछ बुक्स नहीं लेना है, एक ही बुक से जो कि हम फॉलो किया था। मेरा पर्सनल सजेशन है, दिस विल बी पर्सनल सजेशन। जो स्पेक्ट्रम बुक्स था, छोटा सा है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप उसको बस हल्का सा जो टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ने का हर किसी का नोट्स बनाए। फॉर एग्जांपल आपको हिंट के हिसाब से आपको पता होगा 18th सेंचुरी के बाद जो टॉपिक्स है उसको आपको पढ़ना है। जैसे आपका मान के चलिए 18th सेंचुरी के बाद क्या हुआ था, मुगल का जो ये पावर था डिक्लाइन होने शुरू हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया था, एंड देन पॉलिटिकली बहुत सारा न्यू न्यू इन्वॉल्वमेंट्स आ रहा था उसमें। तो जैसे हमारा जो न्यू फ्रीडम फाइटर्स वगैरह का बहुत इन्वॉल्वमेंट होने शुरू हो गया था, वो सब चीज़ उसमें। तो हमेशा मेक श्योर कि आप स्टैटिक पोर्शन के लिए स्पेक्ट्रम, और करंट अफेयर्स के लिए आपका ये करंट अफेयर्स से लिंक कीजिए स्टैटिक को। और पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको पता ही है, ऑलमोस्ट अभी सब करंट अफेयर्स जो करंट इवेंट चल रहा है वही है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। और क्योंकि आप ज़्यादा बुक पढ़ेगा आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि अभी आपके साथ समय नहीं है। तो इसको भी कैसा पढ़ना है आपको, जैसे मान के चलिए कुछ इवेंट्स होता है, जैसे गांधी जी का आपका अक्टूबर में जन्मदिन है 2 तारीख को। तो क्या होता है कि उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, गांधी जी क्या था, किस लिए था, क्या में इन्वॉल्वमेंट था। और रिसेंटली जैसे अभी आपका एक इशू आया था आपके कि ताजमहल में कुछ क्रैक्स वगैरह आ रहा है हल्के। तो आप पढ़ लीजिए कि ताजमहल आ गया न्यूज़ में, तो ताजमहल से क्या क्या लिंकेजेस है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। एंड देन उसको कौन कंस्ट्रक्शन किया था, कौन सा एम्पायर किसका समय में हुआ था, किस लिए था, उससे कौन कौन सा इन्वॉल्वमेंट है, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब क्या है, वो सब चीज़ को आप पढ़ लीजिए। क्योंकि वो न्यूज़ में आए हैं तो टू सम एक्सटेंट पूछ सकते हैं, नहीं पूछते हैं दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट आप हमेशा रेडी हो जाना है। एंड देन आपको प्रीलिम्स में स्वामी पेरियर के बारे में पूछा गया था। तो स्वामी पेरियर द्राविडियन मूवमेंट से रिलेटेड था, तो उसको द्रविडियन मूवमेंट बोलने से, और आपका और एक क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ था आप लोग के प्रीलिम्स में। तो वो भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था उसका अब तो पता है ही है। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कौन आइडियाज़ लाया था, किसका अंदर में था, कौन जो परसीव किया था ये सब आइडिया। तो B.R. अम्बेडकर जी बहुत हेल्प किया था कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोला जाता है। तो वो सब चीज़ क्या है कि अभी B.R. अम्बेडकर जी भी अभी द्राविडियन से रिलेटेड है टू सम एक्सटेंट। तो ये सब चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि द्राविडियन का शायद क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ऐसा करके आप थोड़ा नॉलेज लॉजिक लगाइए, ऐसा करके आप घुमा फिरा के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि करंट अफेयर्स से, प्रीलिम्स से कैसा करके हमको स्टैटिक पोर्शन में लाना है। और फॉर एग्जांपल आपको सिंपल से इसमें भी सेम चीज़ फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। आपको हम वीडियो शेयर कर देगा थोड़ा बाद में। तो जैसे इंट्रोडक्शन एग्जांपल से मान के चले, राउंड टेबल का बारे में पूछे, कॉन्फ्रेंस 1 क्या था, किस लिए हुआ है, स्वदेशी मूवमेंट डिमांड्स था कुछ, तो फेलियर क्यों हुआ है, गांधी एंड दे वर नॉट इन्वॉल्व, क्योंकि उन लोग ब्रिटिशर्स लोग कुछ उनका जो डिमांड्स को फुलफिल नहीं करेगा बोला था पूर्ण स्वराज। तो राउंड टेबल कमीशन क्यों आया जबकि राउंड टेबल कमीशन 1 था। तो राउंड टेबल का बारे में आप एक बार एक्सप्लेनेशन कर लीजिए, व्हाट इज़ राउंड टेबल कमीशन। इंट्रोडक्शन सेम रहेगा सब में, उसमें आपको पूछेगा कि फेलियर, रीज़न ऑफ फेलियर, या फिर हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर।
तो उसको हमेशा से ऐड कीजिए कि क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, फेलियर क्यों हुआ था, सक्सेस क्यों हुआ था, क्या क्या लेने हुआ, ये सब कुछ हमेशा ऐड कर दीजिए, क्योंकि वन हुआ है तभी तो टू हुआ है ना राउंड टेबल कमीशन। तो अच्छा, टू कुछ रीजन से तो फेल हुआ होगा, तब कि राउंड टेबल कमीशन थ्री गया है। थ्री के बाद फिर से फोर तो गया नहीं, दैट मीन्स थ्री फोर थ्री में टू सम एक्सटेंट दे वेर ऑल सेटिस्फाइड, और उसके बाद ये जो प्रोसेस नहीं किया, तो वो सब चीज़ को आप नोट्स ऐसे बना लीजिए ताकि आपको ईजी होने के लिए। ये है हिस्ट्री का पार्ट्स के लिए, और ये है आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक्स। अभी आर्ट एंड कल्चर के लिए बुक्स विच आई फॉलोड वाज नितिन सिंघानिया का जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक्स। तो उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत बल्कि बुक है, बट आई विल सजेस्ट कि आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपका ये किंगडम्स का कुछ पेंटिंग्स वगैरह को आप देख लीजिए। और करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स है उससे हमेशा रिलेट करने के लिए कोशिश कीजिए कि करंट अफेयर्स में क्या क्या आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, तो उसका भी सेम इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन आप नोट्स बना लीजिए पहले क्या है। और हमेशा से, और अरुणाचल पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो अरुणाचल में भी आप बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर एरिया है, जैसे कि हिस्टोरिकल प्लेसेस है आपका, मालिनीतन हो गया, एंड देन परशुराम कुंड हो गया, एंड देन बहुत सारा है, तो उसको भी आप एक बार काइंडली गूगल करके आप नोट मेकिंग करके रख सकते हैं, ताकि क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं आपको कुछ भी चीज़ से रिलेटेड। और आर्ट एंड कल्चर का तो ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर इन द बुक, और आपको सिर्फ टू सम एक्सटेंट रिलेवेंट वाला टॉपिक्स को ही पढ़ना है, अजंता के, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एंड देन आपका जो किंगडम जैसे चोला किंगडम हो गया, एंड देन आपका द्राविडियन आर्किटेक्चर डिज़ाइन, नगारा आर्किटेक्चर डिज़ाइन, ये सब को आप पढ़ लीजिए। और कुछ भी नोटिस से रिलेटेड टॉपिक्स है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर का, जैसे नोटिस में मणिपुर में बहुत सारा कुछ है, डिज़ाइंस वगैरह है, तो उसको थोड़ा फोकस कर लीजिए क्या है नहीं है ना। एंड देन आपका ये ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के लिए भी आपका बहुत सारा बुक्स पढ़ना ज़रूरी नहीं है, विच आई फॉलो। सबसे पहले बात 11 एंड 12 का आपका ज्योग्राफी का एनसीईआरटी को पढ़ा है, फोकस किया है। एंड देन जीसी लियो, विच आई जस्ट वेंट थ्रू इट फॉर वंस एंड ट्वाइस समथिंग। एंड देन अगर आपका साथ समय है, प्रॉपरली आपको नॉलेज लेना है, तो यूट्यूब में एक अच्छा सा एक चैनल है अमित सेन गुप्ता का वीडियो, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक है, बट फॉर मेंस परस्पेक्टिव यू कैन जस्ट गो थ्रू 11 एंड 12 का वीडियो, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा वो आपको। उसमें भी ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, करंट अफेयर्स के साथ हमेशा लिंकेजेस करना है उसको, और ये कुछ भी कॉमन ज्योग्राफिकल टर्म्स रहता है आपका, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, सॉरी, एंड ड्राउट, ये सब कुछ भी रहता है, वो सब को आप देख लीजिए। और जैसे कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहता है कि मूवमेंट ऑफ अर्थ, कोरियोलिसिस फोर्स वगैरह, वो सब को आप जान लीजिए। एंड देन जैसे कि स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमारा डेजर्ट में, डेजर्ट का ये आपका वेस्टर्न साइड में क्या के लिए जो नदी का ओशन एरिया में क्या के लिए ग्रीनरी पार्ट होता है, सेंटर में क्या के लिए डेजर्ट रहता है, वो सबको भी ये सब कॉमन पर्सपेक्टिव ये सब जान लीजिए। तो अगर बुक से पढ़ेगा तो नो वंडर इट विल बी हेल्पफुल, बट अगर अमित सेन गुप्ता का यूट्यूब में वीडियो देख लेता है बोलने से, आई थिंक इट विल बी गिव यू ए क्लियर पिक्चर, क्योंकि उसमें बहुत आपको डिज़ाइंस वगैरह दिखा के पढ़ाता है। तो वंस यू हैव एक अगर थोड़ा सा समय है आपके साथ, उसको आप देख सकते हैं एक बार हल्का सा। एंड देन आपका सोसाइटी, तो सोसाइटी जीएस होने बहुत इंपॉर्टेंट हो गया अभी। तो सोसाइटी बेसिकली ऐसा है कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम चेक किया, तो इसमें बहुत सारा टॉपिक्स ऐसा है कि सोसाइटी से रिलेटेड वाला बहुत क्वेश्चन पूछता है आपका। और अगर आप देखा जाएगा सोसाइटी में, या में आप सिलेबस को सामने रख लीजिए काइंडली, ताकि आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल जाएगा ना उसका। कुछ कुछ चीज़ शायद हम स्किप भी कर रहे हैं, बिकॉज आई एम कवरिंग एवरीथिंग अंडर सोसाइटी, जैसे अर्बनाइजेशन क्या क्या हो गया, वो सब सोसाइटी के अंदर हम गिनती कर रहे हैं। तो जैसे कम्युनलिज्म हो गया, रीजनलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, ये सब का आप एक नोट्स बना लीजिए प्रॉपरली, एकदम बढ़िया से, अपना खुद का पर्सपेक्टिव, अपना खुद का जो वर्ड्स में है उसमें गिवन डेट की वो वर्ड्स सही हो, ताकि आपको पेपर में लिखने ईजी रहेगा। तो किस लिए था, जैसे कम्युनलिज्म क्या है उस लिख लीजिए, सोशलिज्म क्या है लिख लीजिए, रीजनलिज्म क्या है लिख लीजिए। उसके बाद कुछ एडिशन पॉइंट्स होता है, उसका धीरे धीरे ऐड करते रहिए कि उसका इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, रीज़न क्यों था उस ज़माना में आपका कम्युनलिज्म शुरू हुआ है जर्मनी में, आप उसमें रीजनलिज्म क्यों शुरू हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, आपका सोशलिज्म क्यों शुरू हुआ है आपको फ्रांस में, ये सब चीज़ आप हमेशा क्वेश्चन बना के रख लीजिए दिमाग में, ताकि आपका आंसर मिल जाएगा। और बाकी जो टॉपिक्स रहता है आपका, पॉवर्टी हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, अर्बनाइजेशन, एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब चीज़ तो आपको पता ही है कि
वुमेन एम्पावरमेंट क्या, अगर फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में टॉपिक पूछेगा तो ऑलवेज मेक वन प्रॉपर नोट, वुमेन एम्पावरमेंट ये है, सिंपल भाषा में उसको आपको GS2 में पूछ रहा है, सोशियोलॉजी में पूछ रहा है, कहीं में पूछ रहे हैं, ऑलवेज यूज दैट, गिवन दैट कि वो आप एकदम फॉर्मल टू द पॉइंट होगा। उसके बाद उसका रीजंस, कंसिक्वेंसेस कुछ भी है वो आप धीरे धीरे अपने हिसाब से ऐड करते रहिए। फॉर एग्जांपल टॉपिक पूछेगा कि सोशल वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट एंड व्हाट आर द रिलेवेंस ऑफ वुमेन इनटू दिस मॉडर्न वर्ल्ड, तो आपको पूछ सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, आप सिंपल लिख दीजिए, रिलेवेंट क्या है अपना हिसाब से टॉपिक बना लीजिए। सिमिलरली अलग क्वेश्चन में पूछ सकता है कि व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट एंड कंपेयर वुमेन विथ मेन इन टर्म्स ऑफ दिस ये वर्क एक्सपीरियंसेस, कुछ भी पूछ सकता है आपको। उसका फिर से वुमेन एम्पावरमेंट सिमिलर रहेगा, बट एक्सपीरियंसेस जो है मेल और उसका वुमेन और मैन का बीच में जो है कंपैरिजन वो डिफरेंट रहेगा। तो ऐसे टाइप का पर्सपेक्टिव हमेशा रखिए। तो ये सब चीज़ आप टॉपिक करके हमेशा, कुछ भी कमिटी का रिपोर्ट्स वगैरह है, कमिटी का कुछ रिमार्क्स वगैरह है, कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कुछ सजेशन रहता है, उसका हमेशा ऐड कीजिए। तो ऐसे करके आप GS1 को आप कवर कर सकता है। हम लोग GS पेपर 2 के ऊपर बात करता है, तो GS पेपर 2 आपको पता है कि इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, जुडिशरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन रहता है। और सिमिलर टू अदर GS पेपर्स, इसमें भी 3 आवर्स का पेपर है एंड 250 मार्क्स का रहता है। एंड देन 10, 15 एंड 20 मार्क्स का क्वेश्चंस भी आता है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चंस के लिए आपको 150 वर्ड्स लिखना है एंड 15 एंड 20 मार्क्स का क्वेश्चंस के लिए आपको 250 वर्ड्स रेस्पेक्टिवली लिखना है। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं है। और आपका जो बुक है, बुक भी एक ही बुक हम फॉलो किया था, लक्ष्मीकांत, जहाँ में आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेके फंडामेंटल राइट से लेके आपका जितना भी गवर्नमेंट का PM, CM, आपका प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड देन जितना भी कमीशन का है, सबका डिटेल्स मिल जाता है। द ओनली थिंग इज़ डेट कि आपको करंट अफेयर्स के साथ उसको अच्छे से लिंक कर पाना है। तो बुक सबका सेम रहता है बट स्ट्रेटेजी सबका डिफरेंट रहता है। तो मेरा स्ट्रेटेजी आपको हम थोड़ा सिंपल से बता देता है कैसा है। तो जैसे अभी स्टैटिक को आप पढ़ लिया तो करंट अफेयर्स के साथ कैसे लिंक करेगा। फॉर एग्जांपल 2019 में हमारा PRC इशू हुआ था, जब में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। तो बहुत लोग अगर करंट सॉरी ये आपका लक्ष्मीकांत को पढ़ा नहीं है, प्रेसिडेंट रूल क्या है पढ़ा नहीं है, प्रेसिडेंट और गवर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको पढ़ा नहीं, फंक्शन क्या है पढ़ा नहीं, तो मालूम ही नहीं चलेगा कि प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा हुआ है। तो अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है बोलने से आप हमेशा सोच लेना है कि दैट मीन्स गवर्नर का पावर को सबसाइड कर सकता है प्रेसिडेंट जो थ्रू सम क्लोज। तो ऐसे करके प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। तो ऐसे करके आप लिंकेजेस कर सकते हैं क्यों क्यों रीज़न से प्रेसिडेंट का ऊपर से कमांडिंग होकर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो बंद हो गया था। तो सिमिलरली आपका अगर एंटी डिफेक्शन रिसेंटली बहुत देखने को मिलता है आपका इलेक्शन में, तो एक पार्टी से दूसरा एक कैंडिडेट जो दूसरा पार्टी चला गया इलेक्शन में, तो एंटी डिफेक्शन लग गया उसको, करंट अफेयर्स में आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। तो अगर आप पॉलिटिक्स लक्ष्मीकांत में या फिर कई बुक में भी आप अगर एंटी डिफेक्शन किया वो पढ़ा ही नहीं है तो आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि वो क्या के लिए ये सब करंट अफेयर्स चल रहा है। तो आप पहले लक्ष्मीकांत जैसा बुक से आप कॉमन से एंटी डिफेक्शन ये सब कुछ भी नॉर्मली जो स्टैटिक पोर्शन है वो पढ़ लीजिए, तभी आप उसको लिंकेजेस कर पाएगा। तो लक्ष्मीकांत में अच्छे से मेंशन भी किया हुआ है कि कारण ये एंटी डिफेक्शन क्या है, कौन सा आर्टिकल में है, कौन सा पार्ट्स में आता है और क्या क्या क्लोजेस, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स या फिर आपको फंक्शनिंग होता है उसका। तो उसका वजह से पढ़ लीजिए तभी आप लिंकेजेस कर पाएंगे। ऐसे करें कुछ भी करंट अफेयर्स में आता है तो आप लिंकेजेस कर लीजिए, बी इट आपका PM का पावर से ले लो, CM का पावर से ले लो, एनी अदर कमीशन का कुछ भी इश्यूज होता है उससे। तो ये एक हो गया। और आपका है कि दूसरा बात आपको हम जो बताएगा ये शायद आपको इलेक्शन जो भी हो आप सॉरी एग्ज़ाम में काम भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ही टॉपिक्स है जैसे कि इलेक्शन, जो रिसेंटली हम लोग जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुआ है 2024 में एंड देन 2025 में पंचायत इलेक्शन भी आ रहा है। तो उससे रिलेटेड आप कुछ भी इलेक्शन का टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। जैसे आपकी RP एक्ट होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो उसके अंदर बहुत सारा सेक्शंस दिया हुआ है जहाँ में कि डिस्क्वालिफिकेशन होता है कैंडिडेट का, कुछ भी हो, MCC हो गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन से रिलेटेड, वो सबको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इम्प्लीमेंट रेडीमेड कुछ पेपर बना लीजिए आर्टिकल के साथ ना, ताकि आपको इलेक्शन का एग्जाम पेपर में आपको क्वेश्चन आ भी सकता है, आप एंटिसिपेट कर लीजिए। एंड देन कुछ कुछ टॉपिक्स है जैसे कि प्रेशर ग्रुप का हो गया, जिसका काम है गवर्नमेंट को सही वे में प्रेशर करना फॉर द सोसाइटी। जैसे कि अभी आप देखने को मिला इसी दिन इलेक्शन है, वो भी टू सम एक्सटेंट प्रेशर ग्रुप ही है। तो उसमें भी ह्यू एंड क्राई बहुत हुआ है, बहुत सारा मतलब सोसाइटी में मनी कल्चर को लेके इश्यूज, बहुत सारा टॉपिक्स चल रहा था, बी इट इलेक्शन, जनरल इलेक्शन में भी ऐसे चल रहा था। तो वो सब चीज़ को अच्छे से आप एक
टॉपिक्स बना लीजिए। रीज़न कि क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या करने से तीख नहीं होगा, क्या करने से तीख होगा, ये सब चीज़ अच्छे से एक बार बना लीजिए क्या-क्या का ना, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज रहेगा कि क्या रिसेंटली करंट अफेयर्स चल रहा है हमारे यहाँ में। एंड देन जुडिशरी, एज़ यू ऑल नो, जुडिशरी का पावर एंड फंक्शनिंग को पढ़ लीजिए, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ लीजिए। सेपरेशन ऑफ पावर कुछ पढ़ रहा है तो आप हमेशा आर्टिकल्स वगैरह को आप मेंशन कर दीजिए। कुछ भी आर्टिकल, कमिटी वगैरह को मेंशन कर लीजिए आप, जो ऐसा है। फॉर एग्जांपल कुछ भी जुडिशरी का केसेस हो गया, जैसे कि मान के चलो फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाएगा तो आपका बहुत फेमस सा केस है केशवानंदना भारती केस। तो उसमें जहाँ में चैलेंजेस किया गया था अपना जुडिशरी को, तो वो सब चीज़ को आप वो कर लीजिए। ये एग्जाम्पल के थ्रू से केसेस, आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स वगैरह का आप हमेशा बना लीजिए। जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, आर्टिकल 50, तो सबको मेंशन कीजिए क्यों है, नहीं है, जुडिशरी के साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ। तो हमेशा ऑलवेज, जैसे कि करंट अफेयर्स हो गया वैसे टाइप का ही इसको आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स और कमिटी को हमेशा मेंशन कीजिए, ताकि आपका एग्जाम में जो होगा आंसर्स होगा तो नेक्स्ट लेवल लगेगा, लेमेन आंसर नहीं लगेगा बाकी के हिसाब से। अगर आप कुछ पेपर चेक करने ला, जो कोई एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है तो उसको लगना चाहिए हाँ इनको पता है, तो ये बाकी का जैसे नॉर्मल आंसर नहीं दे रहा है, दैट मीन्स ये सम क्वालिटीज़, इसका पेपर्स कुछ थोड़ा अलग से लग रहा है। तो सिमिलरली आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, तो इंटरनेशनल रिलेशन भी ज़्यादा कुछ नहीं है, करंट इवेंट्स में ही ज़्यादा फोकस है, उसका बुक्स भी लेना ज़रूरी नहीं है। तो करंट इवेंट जैसे कि कुछ इश्यूज चल रहा है, अभी यूएस का इलेक्शन हुआ था, तो उससे क्या इशू चल सकता पर अपना इंडिया को भी हो सकता है, जियो पॉलिटिकल में क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो इंडिया को कैसे करके रेडी रहना है, ये सब चीज़ आप रेडी कर लीजिए। और जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि चाइना का कुछ एनकाउंटर हो गया, रशिया का हो गया है, इसराइल और सीरिया का फाइटिंग हो रहा है, यूक्रेन का कुछ इशू चल रहा है, तो सब चीज़ का हमेशा इम्पैक्ट क्या होता है इंडिया में वो सब देख लीजिए। तो जैसे कि मान के चले स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है चाइना का बहुत बड़ा सा, जो इंडिया को इनडायरेक्टली इंडियन ओशियन में इंडिया को डोमिनेट करने के लिए था, तो उसी के थ्रू इंडिया भी एक नया अपना कुछ पॉलिसी लगाया था कि डायमंड ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड्स बोल के, जो कि काउंटर करे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को। तो सिमिलरली कुछ पोर्ट हो गया, जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में जो चाइना का अंदर में अभी है और ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान में, जो चाइना का तो सम एक्सटेंड अंदर में ही काम करता है। तो वो सब चीज़ इंडियन ओशियन में इंडिया को थोड़ा सा डोमिनेट कर सकता है, तो उसी के थ्रू से इंडिया भी चाबहार पोर्ट जो ईरान में है था, तो उसको सपोर्ट करके मतलब अपना इसको काउंटर करने के लिए ही यूज़ करता है टू सम एक्सटेंट। तो ऐसे टाइप का आप कुछ भी, अगर आपको करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ मिलता है तो हमेशा देखिए कि वो इश्यू से इंडिया को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और इंडिया जो क्या उसमें बेनिफिशियली मतलब अपना बेनिफिट हो, या फिर जो पॉलिटिकल का जो टेंशन को कम करने के लिए इंडिया का क्या रोल हो सकता है, ताकि इंडिया भी हमेशा एक पॉजिटिव में एक मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी के हिसाब से क्या पावर रख सकता है, वो सब हमेशा देखना, ऑलवेज ऑलवेज भी पॉजिटिव, क्योंकि अब नेगेटिव होगा तो पेपर में अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ भी होगा तो सब्सटेंशिएट कीजिए कुछ प्रॉपर आंसर्स का या फिर एग्जाम्पल्स का थ्रू से, तो ये है। और बाकी आप जितना देख पा रहे हैं कि इसमें स्कीम्स वगैरह है, वेलफेयर स्कीम्स, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, वो सब तो आपको सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी वगैरह तो आप एथिक्स में भी पढ़ लेगा, तो उसको तो हर कोई पता ही है कि यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी फील्ड विद इंटेग्रिटी एंड आपको जितना भी कंपेशन और थोड़ा नॉलेजेबल होना है, ये सब चीज़ें कुछ कुछ कॉमन सा चीज़ है सिविल सर्विसेज का, हम एथिक्स में बात करेगा। एंड देन आपका पॉवर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, एंड देन आपका कुछ सोशल सर्विसेज एनजीओस वगैरह है, एनजीओस का क्या आपको हेल्प हो सकता है, एसएचजी का क्या हेल्प हो सकता है, मतलब हो सकता है, तो इनका आप एनजीओस का एक बार प्रॉपर से आप एक बार डेफिनेशन बना लीजिए, एसएचजी का डेफिनेशन बना लीजिए, एंड देन उसका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको प्रॉपरली आप नोट करके रख लीजिए, ताकि उसका आपको बाद में काम आएगा, ऐसा है। क्योंकि एनजीओस एज यू ऑल नो इनका कुछ मतलब रोल्स बहुत बड़ा है, बट देने के न्यूज़ में कभी कभी आता है, तो उन आप कुछ अगर एनजीओस का बारे में एक्सप्लेनेशन कर दिया अपना नोट्स में, उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख देगा, करंट अफेयर्स में आता भी है उनसे, जस्ट ऐड कि करंट अफेयर्स में क्या कौन से एनजीओ जो बहुत अभी ट्रेंड में है, कौन से एनजीओ क्या से रिलेटेड है, उसके बाद आप ऐसे करके एडिशन करके अपना आंसर को अच्छा बना सकता है। और पॉवर्टी हो गया आपका, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन हो गया, एज आई मेंशन ऑलरेडी अर्लियर ऑल्सो कि आपका इन सब का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना है, एजुकेशन एक्सप्लेनेशन, सोशल सर्विस, हेल्थ सेक्टर एक्सप्लेनेशन होना है, इंट्रोडक्शन होना है, बॉडी में आपका रीजन्स कि क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्या रीज़न से फेलियर हो रहा है, कमिटी का कौन सा रिपोर्ट के हिसाब से ये है, कौन सा कुछ गुड रिमार्क्स है किसी का,
वेबसाइट्स का हो गया, कुछ भी हो उसको आप अपने से एडिशन कीजिए और टू द पॉइंट रखिए करंट अफेयर्स के हिसाब से, क्योंकि ये सब चीज़ इतना स्टैटिक है कि इसका बार बार करंट अफेयर्स या फिर एडिशन करते रहेगा आप, फ़ायदा भी नहीं है। पॉवर्टी के बारे में आप 3 बार नोट्स लिखने से क्या फ़ायदा है, जबकि एक बार नोट्स लिखो उसको 5-6 जगह में यूज़ कर दो। तो सिमिलरली एजुकेशन का भी है, एजुकेशन के भी एक बार नोट्स लिखो, 5-6 जगह में यूज़ कर दो, जैसे कि अब सोशियोलॉजी वगैरह में बहुत यूज़ होता है। बट वही है कि उसका जो इंटरनल जो जो बॉडी होता है वो चेंजेस हो जाएगा कुछ-कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से। तो उसको आप इमीडिएटली टू सम पॉइंट रिमार्क्स के हिसाब से आप जो चेंजेस कर सकते हैं। तो ऐसे आप कर लीजिए और सिलेबस तो आपके साथ होगा ही है, तो हम जितना आपको बता सके वो तो हम बता ही रहा है। जो ज़्यादा बताएगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो इसको हम जीएस पेपर 2 को यहाँ रखता है। बट बोलने से पहले वही बोल रहे हैं, जैसे पॉवर्टी वगैरह में हो गया, तो उसमें आप जो कुछ इम्पोर्टेंट कमिटी वगैरह जैसे तेंदुलकर कमिटी हो गई, ये सब का आप नोट्स वगैरह को रख लीजिए। रूरल में कितना परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी है, अर्बन में कितना है, तो क्या डिफरेंसेस हो सकता है, क्या से अच्छा ही हो सकता है, वो सब चीज़ अच्छे से मेंशन कर दीजिए ना। और कुछ रिपोर्ट्स वगैरह को डाल दीजिए। फिर हम लोग जीएस पेपर 3 के ऊपर बात करते हैं। तो जीएस पेपर 3 में अगर सिलेबस आप सामने रखा है बोलने से बहुत सारा टॉपिक्स है, तो जिसको हम धीरे-धीरे बात करते हैं अभी। तो सबसे फर्स्ट है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के लिए मेरा जो बुक हम जो फ़ॉलो किया था वो है संजीव वर्मा, जो बहुत पतला सा रहता है। गिवन दैट कि उसका जो करंट अफेयर्स से हम जो हमेशा लिंकेजेस किए। तो 80% वाज़ करंट अफेयर्स एंड 20% वाज़ दिस स्टैटिक बुक। तो इसको आप कैसे करके आइडिया ले सकते हैं कि आप कैसे करके प्रिपेयर करेंगे इसका इकोनॉमी को। तो जैसे कि अभी इकोनॉमी बेसिकली इतना आपको बहुत हाई लेवल ऑफ इकोनॉमी पूछेगा नहीं हमें, जो बेसिक चीज़ें से वही पूछेगा। फॉर एग्जांपल अभी नया गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, तो उसका नया-नया बजट आया है, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट में। तो उसका बजट को आप देख लीजिए, क्या-क्या न्यू-न्यू बजट आया है, बजट से क्या इश्यू है, क्या कमियाँ हैं, तो ये सब करके आप उसको एक बार देख लीजिए ताकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो उसका बजट का सेक्शन आपको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का अपना वेबसाइट में मिल जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं भी आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट का जो इंटरनेट में। और सेकंड हो गया कि जैसे कि बहुत सारा अभी बहुत सारा न्यूज़ में आ रहा है कि टैक्स बहुत राइज़ हो रहा है हर चीज़ में। तो टैक्स राइज़ होने का क्या रीज़न है? क्या बजट को मैनेजमेंट करने के लिए है, क्या है? तो उसको भी आप देख लीजिए, ये सब चीज़ आप करंट अफेयर्स के साथ हमेशा लीकेजेस कीजिए। एंड देन सबसे हॉट टॉपिक है जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, किस लिए है, जीएसटी काउंसिल क्यों है? तो इसमें रोल प्ले करता है स्टैटिक का। अगर आप स्टैटिक से जीएसटी वगैरह पढ़ चुका है बोलने से आपको पता चलेगा कि जीएसटी क्या होता है। और कुछ भी क्वेश्चंस में अगर जीएसटी मान के चलो, जीएसटी काउंसिल ये टैक्स इम्प्लीमेंट कर रहा है अभी, ये जिसमें से पॉपकॉर्न में हो गया, कुछ भी चीज़ में हो गया। तो अगर आप जीएसटी काउंसिल के बारे में पता ही नहीं है तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा टैक्स क्या टैक्स लग रहा है। तो वो सब चीज़ आप पहले पढ़ लीजिए, जीएसटी काउंसिल क्या है, तो जीएसटी क्या इम्प्लीमेंट करता है नहीं करता है, तो धीरे धीरे फॉलो अप होते रहेगा करंट अफेयर्स के साथ, ऐसे लिंक कीजिए। तो सिमिलरली आपका इन्वेस्टमेंट कुछ टॉपिक्स है हमें इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो आजकल आप देख रहे हैं स्टार्टअप इकोनॉमी सिस्टम बहुत आ रहा है, मतलब जो नया नया स्टार्टअप्स बहुत आ रहा है, तो उसको गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव्स दे रहा है, क्या क्या आइडियाज़, क्या क्या कैसे करके हेल्प कर पा रहा है। तो उसको भी आप देख लीजिए, उसको भी आप यूसेज कीजिए। जो हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट का ऊपर तो और रोल प्ले करता ही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारा हो गया हम लोग का। तो हर कोई जॉब का पीछे पड़ा हुआ है, बट देन अगेन जॉब हर किसी को मिलता नहीं है, बट देन अगेन वो अपना लिए खुद से एक स्टार्टअप कैसा करके फॉलो अप कर सकता है, गवर्नमेंट का क्या क्या सपोर्ट है। फॉर एग्जांपल दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन कुछ स्कीम्स है, तो सबका आप यूज़ कर सकता है स्टार्टअप के लिए। तो मतलब स्टार्टअप इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट में कुछ भी गवर्नमेंट का आइडियाज़ इनिशिएटिव्स, कुछ भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो गया, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया, वो सबका भी यूज़ कीजिए इन्वेस्टमेंट पर्पस में, कैसे करके बेनिफिट होता है। तो ऐसा करके आप करंट अफेयर्स के साथ लिंकेजेस कीजिए। ज़्यादा आपको पूछना नहीं है, बहुत हाई लेवल ऑफ करंट अफेयर जैसे आपका चार्टर्ड अकाउंट का एग्जाम होता है वो सब नहीं पूछते हैं, सिमिलर बेसिक नॉलेज है उसका वजह से यूज़ कीजिए। सेकेंड है आपका सिक्योरिटी। इसका भी ज़्यादा कुछ नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस का एक बुक पढ़ा था हम जो अशोक कुमार एंड विपुल अनिकेंत का। गिवन डेट की 80% मेरा करंट अफेयर्स बेसिस था। तो ये सिक्योरिटी में एक आपको नॉर्मल सा टिप्स बताएगा हम जो, आपको सिर्फ मेमोराइज़ करना है, रट्टा मारना है आपको, क्योंकि जो भी टॉपिक्स होता है ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर ही होता है। जैसे व्हाट इज़ टेररिज्म सेम रहेगा, इंसर्जेंसी सेम रहेगा, नक्सलिज्म सेम रहेगा। येस, उसका जो अंदर का जो रीजन्स और इनपुट्स वगैरह होता है वो चेंजेस हो सकता है। वो सब चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिए। और नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा जैसे नॉर्थ ईस्ट का टॉपिक्स तो आएगा ही हमारा अरुणाचल में, तो येस अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट का जो टॉपिक्स में ये आ सकता है, ये सिक्योरिटी चैलेंजेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नागा हिल का क्वेश्चन भी आया था, तो इंसर्जेंसी नागालैंड में ज़्यादा होता है। और अभी रिसेंटली म्यांमार में कूप हुआ था, मिलिट्री कूप, तो उसका इन्फ्लुएंस जो कैसे करके म्यांमार सॉरी मणिपुर और आपका
नागालैंड में हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट का कॉन्टेक्स्ट में, और उसका थ्रू से अरुणाचल में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट जो वो सब आप देख सकता है। एंड देन हो गया इमिग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन हो गया, जैसे बांग्लादेश का रिसेंटली गवर्नमेंट को वो क्या था, गिराया गया था तो न्यू इलेक्शन के लिए, और कुछ भी अंतर इंटरनल मैटर्स है, तो उसका कुछ भी इलीगल इमिग्रेशन आ सकता है, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का तो इमिग्रेशन को लेकर बहुत इशू है ही है। तो वो सब चीज़ आप देख लीजिए। तो जैसे कि बांग्लादेश बाउंड्री में बहुत बड़ा सा एक एरिया है, कॉक्स बाजार बोल के, जैसे इलीगल चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते रहता है, तो वो सब चीज़ का अच्छे से फोकस कर लीजिए। ड्रग्स का कुछ केसेस हो गया बोलने से, गोल्डन ट्रायंगल बोल के एक जगह है आपका, म्यांमार, मणिपुर एंड देन कुछ एरियाज़ को, लाओस समथिंग कुछ एरियाज़ को गिना जाता है। तो वो सब चीज़ उसका इम्पैक्ट जो कैसे होता है, क्योंकि आजकल ड्रग्स भी बहुत बड़ा इशू चल रहा है, एनडीपीएस एक्ट वगैरह को आप पढ़ लीजिए। तो ये सब चीज़ सिक्योरिटी का जो करंट अफेयर्स के साथ ऐसे लिंकेजेस कीजिए ताकि आपको इशू रहे, मतलब ईजी रहेगा। और जैसे आपका क्वेश्चन में भी आपको पूछा है मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ उसके बाद आपका दुरन लाइन क्या क्या है, तो उसका बारे में आप पढ़ लीजिए। तो बॉर्डर का बारे में आप पढ़ लीजिए, बॉर्डर में कौन सा सिक्योरिटी फोर्सेस रहता है, और बॉर्डर किस किस से कनेक्टेड, क्या के वहाँ से हम लोग को प्रॉब्लम्स हो सकता है, वो सब चीज़ को आप पढ़ लीजिए। बाकी तो ऑलमोस्ट सिक्योरिटी का तो सिंपल ही है, वो आप इंटरनल रीजन्स को आप करंट अफेयर्स के साथ एडिशन कर सकता है। और ये आपका थर्ड है आपका इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं, वन गो शंकर आईएएस, एवरीथिंग इज मेंशन दियर, बायोडाइवर्सिटी से लेके आपका डेजर्ट से लेके सब कुछ मेंशन है वहाँ में, गिवन डेट की आपको पढ़ने जानना है कि कौन सा पढ़ना है उधर में। तो करंट अफेयर्स भी इसका 50-50 है दोनों का क्योंकि स्टैटिक में ऑलमोस्ट सब मिल जाता है, और करंट अफेयर्स में आपको क्या हो रहा है आपको समझने के लिए। तो बायोडाइवर्सिटी का भी शंकर आईएएस को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा सकेगा क्योंकि ऑलमोस्ट मेंशन है बुक में। और करंट अफेयर्स के साथ कैसे लिंकेजेस करेगा, फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटी हो गया, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको जैसे कि अरुणाचल का जैसे मान के चले कुछ करंट अफेयर्स आ गया, इतालियन का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो रहा था उस साइड में, ऊपर तरफ में, ईस्टर्न बेल्ट में, तो आदमी लोग उसको वो करने शुरू हो गया, मतलब अगेंस्ट करने गवर्नमेंट का, क्यों बोलने से इन्वायरमेंट को जंगल काटेगा ऐसा डैमेजेस होगा। उसके दो पॉइंट है, एक हो गया कि आपका डैम भी ज़रूरी है पावर सप्लाई के लिए, दूसरा हो गया कि इन्वायरमेंट को भी हम इम्पेक्ट नहीं करना है, तो इसका आपको कैसा करके अप्रोच रखना है वो सब चीज़ आप देख लीजिए, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या पॉजिटिव सॉल्यूशन हो सकता है, ये सब चीज़ को आप पढ़िए, करंट अफेयर्स के साथ लिंकेजेस कीजिए। सिमिलरली आपका हो गया अरुणाचल में बहुत सारा पोटेंशियल डैमेजेस होता है, जैसे कि आप अर्थ कटिंग का हो गया डेवलपमेंट का कारण, जिससे सोइल इरोजन होता है, लैंडस्लाइड होता है, डैमेजेस रहता है क्रॉप्स वगैरह का, वो सब चीज़ को भी आप देख लीजिए। तो ऐसे करके, और अपना जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिजर्व्स वगैरह होता है, पाके टाइगर रिजर्व्स हो गया, बहुत सा नाम दफा हो गया, तो वो सब चीज़ को अच्छे से फोकस कर लीजिए, क्योंकि रिसेंटली ह्यूमन और एनिमल का कन्फ्लिक्ट भी बहुत हो रहा है। तो जैसे अभी इस बार ब्लैक लियोपार्ड का कुछ मर गया, मार दिया बोले, कुछ केसेस हुआ है, क्यों, डेवलपमेंट आया है, ज़रूरी है डेवलपमेंट भी, बट एट व्हाट कॉस्ट, एनवायरनमेंट का बीच से जा रहा है, तो उनका भी तो प्रॉब्लम है ना। और और ये बहुत केसेस चल रहा था, जोटे में टाइगर घूम रहा है ऐसा बोल के, तो बेसिकली ये सब चीज़ फनी वे में ले रहा अलग बात है, बट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन पर्पस, तो आप देखना है कि क्यों ऐसा घूम रहा है, अगर घूम भी रहा है तो क्यों बोलने से उसका घर में हम लोग डेवलपमेंट अभी लेके जा रहे हैं, तो उसको कैसे प्रिजर्वेशन करना है, क्या है क्यों नहीं है, वो सब चीज़ अच्छे से देख लीजिए। तो हर चीज़ को मीम्स और हर चीज़ को फ़नी चीज़ को हमेशा एजुकेशनल पर्पस में अगर आप पढ़ने से आपको अच्छा रहेगा, डायनेमिज्म बढ़ेगा आपका, कैसा नॉलेज होता है, तो ये सब चीज़ आप देख लीजिए ना। तो उसके बाद ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट वगैरह होता है, उसको कैसे करे रिजोल्व करना है, वो सब चीज़ आप देख लीजिए। फॉरेस्ट का क्या, फॉरेस्ट ये पर्सनल लॉ का क्या रोल्स रहता है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल रहता है, डीएफओ का क्या रोल रहता है, वो सब चीज़ आप देख लीजिए। एंड देन बहुत सारा टॉपिक्स है, टेक्नोलॉजी वगैरह है, टेक्नोलॉजी क्या क्या नया टेक्नोलॉजी, उसका तो ऑलमोस्ट सब करंट अफेयर्स ही है, इसका बुक्स वगैरह नहीं है। तो क्या क्या नया नया टेक्नोलॉजीज आया है, अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह आ रहा है, जो कि टॉपिक्स में भी है, फार्मर्स वगैरह लोग के लिए, फार्मिंग एग्रीकल्चर में यूज़ हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत सारा, इवन जो कन्वेंशनल जो मनी है उसको भी चेंजेस कर रहा है, जैसे कि ये आपका बिटकॉइन वगैरह हो गया, ये सब चीज़ कुछ कुछ नए नए चेंजेस आ रहा है, उसका आप देख लीजिए। और आपका ये फार्मर्स वगैरह का है, फार्मर्स का तो इश्यूज़ को आप ऑनलाइन से आप कभी भी करंट अफेयर्स होगा उसका आप जिसे भी मिस मत कीजिए, उसका हमेशा सॉल्यूशन रिजोल्यूशन, क्या इश्यूज़ है क्या इम्पैक्ट होगा उसका हमेशा देख लीजिए। कुछ नए नए गवर्नमेंट के स्कीम्स है, प्रधानमंत्री हो गया, आपका ई नाम हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया, और कुछ प्रधानमंत्री आवास कुछ योजना है, मतलब जहाँ में उसको कुछ पेमेंट्स वगैरह देता है ये अपना फार्मर्स वगैरह लोग को, 2000 का क्वार्टरली, तो वो सब चीज़ आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री कृषि समथिंग कुछ है आई कैन रिकॉल इट राइट ना, बट आप उसको एक बार सर्च कर लीजिए ना क्या है।
और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का बारे में तो आपको पता ही है, अरुणाचल कितना प्रोन है डिज़ास्टर में। तो ऐसा करके नॉर्थ ईस्ट जो कितना प्रोन है डिज़ास्टर में, उसको आप देख लीजिए। ये सब चीज़ आएगा आपको अगर डिज़ास्टर का टॉपिक्स, अगर अरुणाचल का टॉपिक्स इंक्लूडेड है, नॉर्थ ईस्ट का टॉपिक्स इंक्लूडेड है बोलने से। जैसे कि बहुत सारा एरिया है आपका, मेघालय हिल्स हो गया आपका, बहुत सारा ईस्टर्न बेल्ट में है, जहाँ में माउंटेनियस टेरेन जो हम लोग का ऐसा है कि हमेशा कुछ ना कुछ ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट होते रहता है, जिसका कारण कि अर्थक्वेक ये सब का बहुत सारा चांसेस है, प्रोन है। वो साइड तो और भी प्रोन होता है, मणिपुर मेघालय एरिया तो और भी प्रोन होता है ये आपका अर्थक्वेक वगैरह का। तो उस सबको आप देख लीजिए। और इलीगल आर्ट कटिंग, सॉइल इरोजन का कारण भी हम लोग का डिजास्टर बहुत होता है। डिजास्टर का इश्यूज क्या है, क्या मतलब ये आपका फ्लैश फ्लड क्या अगले होता है, अर्बन फ्लड क्या अगले होता है। आजकल से डेवलपमेंट सामने सामने आ रहा है, घर सामने बन रहा है, रास्ता का सामने बन रहा है, पहाड़ गच्ची सामने में है, बारिश आ रहा है, एंड देन इलीगल आर्ट कटिंग भी हो रहा है बारिश का मानसून सीजन में। एंड देन साथ ही साथ लॉस ऑफ लाइफ भी हो रहा है, डैमेज टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी हो रहा है, हाउसेस हो रहा है। तो सब कुछ को कैसे इम्पेक्ट पड़ता है वो सब चीज़ आप पहले से नोट मेकिंग कर लीजिए। जैसे लैंडस्लाइड का हो गया, व्हाट इज लैंडस्लाइड, एकदम लिख लीजिए। हर बार लिखना जरूरी नहीं है, 10 बार क्वेश्चन आएगा, बट लैंडस्लाइड का इंट्रोडक्शन वही रहेगा। उसका जो बॉडी में हो गया वो लिख लीजिए, रीजन, व्हाट आर द रीजन की क्यों होता है, कॉजेस क्या है। एंड देन कुछ रिपोर्ट्स वगैरह होगा, आप एडिशन करते रहिए, वैल्यू एडिशन। एंड देन आपका ये कंक्लूजन में लिख दीजिए कि अगर आप क्या बेस प्रॉपरली आप स्टैंडर्ड फॉलो करेगा तो क्या कम हो सकता है, क्या आप ये किसी का आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके, अगर आप इशू इम्प्लीमेंट करके, अगर आप सच में प्रॉपरली यूज़ किया बोलने से, उसको कैसे करके कम किया जा सकता है, वो सब चीज़ आप देख लीजिए। क्योंकि बहुत बेसिक सा चीज़ है, सिलेबस देखिए तो आपको पता चल जाएगा। अब ये वीडियो में हम लोग जीएस पेपर 4 के ऊपर बात करते हैं, जो कि एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। तो इसमें हम जो बुक फॉलो किया था वो था लेक्सिकन, जो कि जिसको हम ज़्यादातर केस स्टडी के लिए फॉलो किया था। और ये पेपर बहुत बेसिक है, वेरी हाईली स्कोरिंग इन नेचर। तो अगर इसमें अच्छे से आप पढ़ लिया बोलने से, अच्छे से प्रिपरेशन किया बोलने से, बाकी जीएस में अगर कम आता है बोलने से भी, ये आपको बहुत टू सम एक्सटेंट बैलेंस कर देगा आपका मार्क्स को। और इसमें दो है, जैसे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है। जो सेक्शन ए इज बेसिकली डील्स विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड एंड ऑल, एंड आपका रोल ऑफ सिविल सर्विसेज ऐसा है। एंड सेक्शन बी है जो कि वो आपका पूरा करंट अफेयर्स, सॉरी, केस स्टडी से डील करता है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ को आप याद रखना है। नंबर वन मेमोराइजेशन, नंबर टू बी पॉजिटिव, नंबर थ्री बी फॉर्मल। मेमोराइजेशन हम इसलिए बोला है क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे इसमें टॉपिक्स है जिसको आपको मेमोराइज करना है, नो अदर अल्टरनेटिव। सेकेंड बी जेन्युइन बी पॉजिटिव, इसलिए है कि क्योंकि कुछ भी आप आंसर लिख रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव होना है, बी जेन्युइन होना है, क्योंकि नेम इटसेल्फ सेज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। नंबर थ्री, इसमें फॉर्मूला में इसलिए बोला है कि बाकी जीएस में आप टू सम एक्सटेंट कुछ भी बैलेंस करके आंसर लिख सकते हैं, बट यहाँ में क्या है कि कुछ भी टॉपिक जैसे एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, कंपेशन हो गया, एम्पैथी हो गया, उसका अलग से नोट्स बना के रख लीजिए पहले से, कई बुक से ना, जैसे लेक्सिकन बुक से लिख के रख लीजिए विद गुड एग्जांपल्स। तो क्या होता है अगर आपको कल को इफ दे आस्क क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रिटी, एम्पैथी और समथिंग, देन यू विल बी इजीली एबल टू आंसर इट in a more formal way. And if you make a notes beforehand, then you won't get astray of your answers while writing your actual exam in your mains exam. तो क्या होता है कि इसमें आपको अच्छा भी लगेगा एग्जामिनर को कि यस ही इज़ एक्चुअली राइटिंग टू द पॉइंट, तो विच इज़ एक्चुअली हाईली डिमांडिंग इन एथिक्स पेपर इटसेल्फ। तो एग्जांपल भी आप सही दे दीजिए, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका। एग्जांपल जैसे कि मान के चलिए व्हाट इज इंटीग्रिटी आपको पूछ लेता है, तो क्वेश्चन में पूछेगा कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विसेज। तो सिमिलरली अगर आप नोट्स बना के रखा है व्हाट इज इंटीग्रिटी, तो उसको आप ऐड कर दीजिए, बार बार ऐड करना जरूरी नहीं है, एक बार लिख दिया, दो क्वेश्चन पूछने से भी इंटीग्रिटी तो सेम रहेगा। यस, दूसरा जो सेक्शन है जैसे रोल इन सिविल सर्विसेज, रोल इन दिस लाइफ ऑफ ए डॉक्टर, ऐसा कुछ भी पूछ लेता है, तो उसमें आपको सिर्फ रीजंस को चेंज करना है। तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी का रोल इन सिविल सर्विसेज पूछ लेने से आप दे दीजिए उधर में कि जैसे पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के लिए सर्विसेज करना है, करप्शन फ्री होना है, एम्पैथी होना है, कंपेशन होना है। तो ये सब चीज़ आप एडिशन करते रहिए, अगर टू द पॉइंट होने से पेपर भी देखने अच्छा लगता है। और इसमें ये एथिक्स का पेपर वन में जी सेक्शन ए में आपका ज़्यादातर ये है, सिविल सर्वेंट के ऊपर बहुत सारा टॉपिक्स पूछता है कि क्यों करप्शन नहीं करना है, क्यों मतलब आपका पॉजिटिव रहना है, क्यों पब्लिक के लिए सर्विस अच्छे से करना है, ये सब चीज़ आपको क्वेश्चन पूछेगा। वो आप हमेशा सिविल सर्विसेज का ऊपर आप रेडी करके रख लीजिए क्या है नहीं है ना। और आपका जैसे कि टॉपिक्स आप आराम से बाद में देख लीजिए, हम आपको जैसे आइडियाज़ बता रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा टॉपिक्स है जो हम कवर नहीं भी कर पाएंगे, वीडियो भी लंबा हो जाएगा।
बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। इन एथिक्स सेक्शन ए के लिए या फिर एथिक्स पेपर के लिए कॉमन से अच्छा अच्छा कोटेशन स्वामी विवेकानंदा, एज आई मेंशन अर्लियर ऑल्सो, स्वामी विवेकानंदा हो गया, लॉर्ड बुद्धा हो गया, एंड देन आपका महात्मा गांधी हो गया, जवाहरलाल नेहरू, एंड देन मेनी ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक अब्राहम लिंकन, ये सबका ऊपर आप जो अच्छा अच्छा कोटेशन उनका रेडी करके रख लीजिए, रिपोजिटोरी ना कुछ कहानी रेडी करके रख लीजिए ताकि आप इसको यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि 2 क्वेश्चन ऐसे तो पूछते ही कि ये कोटेशन है, इसको एक्सप्लेन करो, तो उसका ध्यान रख लीजिए। और सेक्शन बी केस स्टडी से, इसका ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत लेंदी होता है, क्वेश्चन इटसेल्फ इज़ वेरी लेंदी। तो फर्स्ट मेरा सजेशन ये रहेगा कि 3 घंटा का पेपर है, ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट सेक्शन ए विद इन 1 आवर्स, एंड सेक्शन बी को आप 2 घंटा देने ट्राई करो, क्योंकि बहुत लंबा है सेक्शन बी, क्वेश्चन भी बहुत सारा रहता है इसमें, और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपका क्या आंसर भी सोचना पड़ता है। तो क्या हो गया कि तो बहुत डिफ़िकल्ट रह जाता है बहुत केसेस में। अगर आप सेक्शन ए में अगर समय दे दिया जाता, तो क्या होता है कि सेक्शन बी के लिए टाइम कम पड़ जाता है, और सेक्शन बी में आई थिंक हाई स्कोरिंग मार्क्स हाई स्कोरिंग मार्क ज़्यादा रहता है उधर में, 250 वर्ड्स का हो गया, 15-20 मार्क का वही रहता है। तो उसको आप काइंडली देख लीजिए। तो इसको करने के लिए यही है उपाय कि आप जितना हो सके पीवाईक्यू आप पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। हम लोग का जो 2020 का बीपीएससी हो गया या फिर यूपीएससी का कोई भी एथिक्स पेपर लेके आप आराम से पढ़ते रहिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि कैसा होता है पेपर। तो उसके बाद आप 1-2 आंसर करने के लिए भी कोशिश कीजिए, और जो आपको सोचना है ना इसमें, ऑलवेज बी पॉजिटिव, और ऑलवेज ट्राई टू लिंक योरसेल्फ विथ रियलिटी, क्योंकि क्वेश्चन आपको इतना बहुत सारा लंबा होता है और आप उसको पढ़ने में कोई कोई जो जहाँ तहाँ लिख देता है, वही मत कीजिए, टू द पॉइंट लिखिए। और 250 हमेशा याद कीजिए कि 250 वर्ड्स का लिखना है, ज़्यादा भी नहीं लिखना है। आपको आंसर बहुत कुछ मालूम होता भी है बोलने से भी, छोटा-छोटा पॉइंट्स बनाए, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी हो गया, कंक्लूजन हो गया। बट यहाँ में थोड़ा इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का रोल जो थोड़ा कम प्ले होता है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको बैलेंस करना पड़ता है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप गुड कोटेशन रेडी रख लीजिए, कहानी रेडी रख लीजिए, और जितना हो सके पॉजिटिव रहो, और कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसको जेन्युइनली आंसर दे दो। रियलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है पता नहीं, बट अगर आप वो पोजीशन में होगा तो आप क्या करेगा वो आप देख लीजिए। तो ऑलवेज बी इन ए गुड साइड ना, इसका जितना भी है मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा। तो ये वीडियो में अभी हम लोग ऑप्शनल के ऊपर बात करते हैं। तो हमें 2 तरह का एस्पिरेंट है, जो अभी तक ऑप्शनल सिलेक्शन नहीं किया है प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद भी, और बहुत कंफ्यूज में है, और दूसरा है जो ऑप्शनल सिलेक्शन कर चुका है एस्पिरेंट, बट उनको पता नहीं है कि ऑप्शनल को आगे कैसे लेकर चलना है। तो यहाँ में ऐसे है कि फर्स्ट एस्पिरेंट के लिए जो कंफ्यूज है अपना ऑप्शनल को लेके, सी यहाँ में बहुत सारा अभी ऑप्शनल को चूज़ करने एक्चुअली आपके साथ समय है ही नहीं। आप अगर अगर आप ऑप्शनल को चूज़ कर रहा है बोले, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपका कुछ भी ऑप्शनल है, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कोई भी ऑप्शनल है, उसका पिक कर लीजिए। अगर आप शुरू कर चुका था तो और अच्छा बात है, आप उसमें स्टिक कीजिए। फॉर एग्जांपल ऑप्शनल जैसे सोशियोलॉजी में हो गया, बेसिक बुक है नितिन सांगवान का हो गया, एंड देन ज्योग्राफी में हो गया माजिद हुसैन का है, लक्ष्मीकांत है पॉलिटी का, एंड देन आपका बहुत सारा बुक्स है ऑप्शनल का, जो कि क्योंकि मेरा तो सोशियोलॉजी था तो हमको इतना आइडिया नहीं है बाकी का। तो उसको आप कोई भी आपको एक बेसिक बुक को आप पिक कर लीजिए, एंड देन स्टडी कर लीजिए, शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ समय नहीं है। और अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके साथ ऑप्शनल सिलेक्शन करने के लिए कुछ मतलब अपॉर्चुनिटी है क्या, तो ये वीडियो देखो। अगर आपको कुछ चेंजेस करने का मन करता है, इट्स अप टू यू। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि आप कोई भी स्टैटिक बुक में आप जो स्टिक करके उसको शुरू कर दीजिए पढ़ने, क्योंकि टाइम नहीं है। जीएस भी आपको पढ़ना है, एसए के लिए भी पढ़ना है, तो बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है। तो दूसरा है आपका एस्पिरेंट, जो कि क्लियरली अपना ऑप्शनल सिलेक्शन कर चुका है ना, बट गाइडेंस चाहिए उसको। तो मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा, फॉर एग्जांपल कोई भी आप ऑप्शनल सिलेक्शन मान के चलिए, आप ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो आप आपका जो बेसिक बुक है, तो आप उसको एक बार पिक करके पढ़िए। आप 15-20 डेज़ के अंदर आप एक बार ख़त्म कर लीजिए पढ़ के, एंड देन आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगा है आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में आप जैसे मान के देख सकते हैं कि हर चीज़ का टॉपिक वाइज दिया होता है आपका यहाँ में। अगर आप सिलेबस है सोशियोलॉजी का हम लेकर रखा हुआ है, तो टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो हर एक टॉपिक का आप जो नोट्स बना लीजिए। जो बेसिक बुक है ना, तो उसका हर एक बुक का आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना के आप उसका मतलब सिंपल सिंपल सा नोट्स बना लीजिए, उसका बाद में रिवीजन करते रहिए। शुरू में जो आपका नोट्स बनेगा वो तो बल्कि होगा, बट कुछ नहीं है। उसके बाद आप बुक्स को पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके बाद जो बल्कि नोट बनाए उसको आप जो पढ़िए। पढ़ने के बाद अगर आपको सिंपल लग जाता है कुछ भी टॉपिक्स,
तो उसका बार बार पढ़ना जरूरी नहीं, उसका आप जो कटिंग करते रहिए, कितना शॉर्ट में हम जो इसको बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन का पैटर्न के हिसाब से ऐसे बनाते रहिए। तो करंट अफेयर्स में अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है, प्लस माइनस एडिशन करते रहिए पॉइंट डाल के वही नोट्स में। तो मेरा भी ऐसा था, शुरू में जब नोट्स बनाया था बहुत बल्कि था, उसका हम 3 बार पढ़ा, एंड देन लास्ट में जब हम नोट्स बनाया था इट वॉज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अर्लियर विच आई मेड। तो 3 बार रिवीजन में मेरा एक छोटा सा नोट्स बन गया था, उसमें हम जो उसके बाद हम चेंजेस नहीं किए, जब पुराना जो नोट्स था उसको भी हम जो फोकस नहीं किए, जो मेरा नया बुक्स था नया ऑप्शनल नोट्स था उसको हम जो पढ़ा है। कुछ भी एडिशन करना है बोलने से हम अलग नोट्स ऐसा नहीं बनाएगा, हम स्टिकी नोट डाल देगा उसके ऊपर, या फिर कुछ भी प्लस माइनस करना है पेन पेंसिल से हम जो कर देगा, ताकि हमको बार बार बनाने में टाइम वेस्ट भी होता है। तो उसके बाद आप रिवीजन करते रहिए। तो रिवीजन इज़ द अल्टीमेट गेम यहाँ में। आप क्योंकि जितना भी नोट्स बनाओ, जितना भी पढ़ लो, रिवीजन नहीं किया कुछ फ़ायदा नहीं है, सब कुछ पानी में चला जाएगा। बट आपको फिर से लगेगा कि इतना कुछ पढ़ लिया मगर दिमाग में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, आप रिवीजन करते रहो। अगर फिर भी आपको भूल रहा है अलग से, एक्चुअल एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको क्या होता है कि जितना आप क्वेश्चन देखने के बाद आपका माइंड जो एकदम फ्री स्टेट में चला जाता है, तो क्वेश्चन देख लेने के बाद आपका जो यूज़फुल चीज़ को क्या होता है कि काउंटर करता है, उसको आपको बैलेंस करके आपको दिमाग में ला देता है। और जो जो यूज़लेस चीज़ हो जाता है, जैसे सोशियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है बोलने से, वो जो चला जाता है। तो ऐसे करके आपका जितना भी रिवीजन है वो काम आता है। तो इसलिए मत डरिए, पढ़ते रहो, टेंशन नहीं है ना। बट मेरा आपका सजेशन वही रहेगा, जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जो अभी तक ऑप्शनल को लेके कन्फ्यूज़ है, प्लीज़ 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 मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली ऑप्शनल को ज़्यादा देर मत रखिए चूज़ करने में। और अगर कुछ भी आपको बेसिक बुक भी नहीं मिल रहा है बोलने से, आप काइंडली कोई भी इंस्टीट्यूट का मतलब आई विल सजेस्ट कि बाहर इंस्टीट्यूट का आप जो कुछ वो बुक्स ले लीजिए। बुक्स लेने के बाद उसको आप पढ़ते रहिए, ताकि एटलीस्ट आप कुछ तो शुरू कर पाएँ, नहीं तो आप गेम में ही नहीं रहेगा अगर आप शुरू अभी नहीं करेगा। तो ऑप्शनल को लेके मेरा यही था आपसे अप्रोच। और ऑप्शनल का भी सेम पैटर्न है आपका, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और हमेशा एडिशन करते रहिए कुछ कुछ नए नए इनपुट्स को। और टॉपिक वाइज अपना नोट्स बना लीजिए ताकि आपको सिंपल रहेगा। और टू द पॉइंट रखिए क्योंकि समय नहीं है, और रिवीजन करते रहिए। और जो एस्पिरेंट जो ऑप्शनल सोशियोलॉजी का इंटरेस्ट है लेने के लिए, हमको बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर आप काइंडली सेपरेट वीडियो बना दीजिए ऑप्शनल का। तो अल्ट्रा में बेस्ट अभी अब वीडियो बना के अभी हम अपलोड कर देते हैं आप लोग के लिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप शेयर कर दे उसको भी किसी के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शनल का भी स्ट्रेटेजी बना देता है, एंड देन कुछ क्वेरीज है उसको भी हम बना देता है, क्योंकि शायद ये वीडियो भी बहुत लंबा चला गया होगा। तो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग दिस सेशन। और अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। और हमको भी अच्छा लगेगा कि अगर आपको मेरा वीडियो से अगर छोटा सा भी हेल्प मिला ना, हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। और आई विल फील कि जो हमको फेस करना पड़ा है प्रॉब्लम को, वो आपको फेस करना ना पड़े। As you can see, this is how I made my art and culture notes. This is Chola Kingdom and their importance. For example, they were very good in administration. So what were the importance? I had noted down, and some sociological impacts, the architectural designs, sculptures, coins which were important, and also some basic temple structures were there which I wrote down with some diagrams. The notes are all simple, not very fancy, but to the point. Some Mughal architectural designs were there. What were the importance of Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb, and the importance of paintings in there. Similarly, for geography also, I had not done the same. As I mentioned, you should always maintain three things, which is introduction. See, this topic is all about earthquake, so I had wrote down in introduction, and some body, which were causes, types were there, and conclusions were also there. And these are some small points which I kept on adding after going through current affairs and some other day-to-day newspapers with some designs. This topic is about flood, so earlier these points were not there. I had added it only after reading or only after going through current affairs. As you can see, the similarity. See, this one is history part. So I had done the same. I mentioned what Swadeshi movement is, and then I note down some important topics.
and this one is revolutionary terrorism, which I kept on, adding smaller notes like this.